पढ़ ही रहा है. So that is one way of educating those patients. Second, promoting mask and sanitizers. Now, कई जगह हमने अपनी रिपोर्ट्स में अगेन ये लिखा है कि when a person is coming to you, registration करवा रहा है अपना, कैसे होते हैं registration counters? एक विंडो मोस्टली विंडो होती है, होल होता है, पेशेंट उसमें घुसा होता है रजिस्ट्रेशन काउंटर वाले के मुंह में. Isn't that the scenario? So it's kind of unacceptable, but this is what is happening. So at least वहाँ पे अगर हम उस जो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे स्टाफ बैठा है उसको सेंसिटाइज कर दे कि भाई you get a bunch of mask indented, और जो तुम्हें पेशेंट ऐसे लग रहा है कि जो खांसी के साथ आ रहा है कोई भी है उसको एक मास्क पहना दो. ठीक है, तुम उसको ये बोलोगे जाओ मास्क लेके आओ तो पहने आओ, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं करेगा. सो एटलीस्ट यू कैन हैव गेट योर मास्क इंडेंटेड वहाँ रखा, जिसको नीड है यू कैन गिव इट देयर. सो दैट इज प्रोविजन ऑफ मास्क. एंड सिमिलरली कुछ हॉस्पिटल्स जैसे अभी कोविड के टाइम में देयर आर दोस फुट ऑपरेटेड डिस्पेंसर्स ऑफ हैंड. अगर आप बोतल रखोगे वो तो गायब हो जाएगी. ठीक है, so फुट ऑपरेटेड हैंड डिस्पेंसर्स या ऐसा कुछ चीजें की फुट हैंड. Then segregation, this is pretty much like hygiene and separation जो हमने बात किया था. We can have a tough corner, we can give them priority passes. All those things can be done for the segregation of respiratory symptomatic patients. Again, another example of fast tracking. अभी हमने ये तो बात किया कि priority passes बना के you can fast track them. Second is कई जगह screening stamps use होते हैं. So like the 4S screening stamp for HIV patients, वो TB HIV वाला, या 10S symptoms और जिसकी हम बात करते हैं, that can be done again. वो हम कफ कॉर्नर पे भी किसी को बोल सकते हैं या हम registration counter पे भी बोल सकते हैं. If the patient is having any of these symptoms, you can just put a stamp and he will be fast tracked. Now separate sputum collection area. ये जो अभी हमने कफ कॉर्नर की confusion थी, it's a separate sputum collection area. ठीक है, वो हम बोलते हैं जो आप लोगों ने बताया था कि it's a separate जगह. जब हम पेशेंट को बोल रहे हैं स्पॉट सैंपल लेके आओ, जब आता है पेशेंट, what does the technician tell him? जाओ खुले में बाहर सैंपल लेके आओ. तो खुले में कहाँ जा रहा है, किसके मुंह पे खांस के आ रहा है, we are not looking at it, but this is the case. He will just go anywhere जहाँ उसको जगह मिलती है, he will come, he is not taking of airborne precautions that time. ठीक है, तो if you have a designated area, एक विषय की कैटेगरी लगा के या कुछ भी इधर जाके तुम्हें खांसना है, which area is well ventilated away from general public, you are still trying to contain the spread of infection. Okay, so and इधर हम is just a line it is written 20 ACPH, more than 20 ACPH. अभी के लिए बस ये नंबर याद कर लीजिए. जब ACPH का हम PPT पढ़ेंगे then will be clear what exactly ACPH is. So we need more than 20 ACPH in these areas at least. Then prompt TB treatment. Again जैसे हमने सुबह बात किया था कि till the time you are not initiating treatment, he is an open case जो कि पूरा फैला रहा है. तो as soon as the patient is diagnosed, please put him in treatment and use the fast approach that is by WHO. Does anybody know what the fast approach is? Short form है. Great man. ठीक है, so that is the fast approach for prompt TB initiation. So fast finding TB cases, A से actively, S से separating safely and treating effectively. That's the short form fast. So seating arrangement, again a very doable thing. जो maybe you will have a thought of this. ये फोटो में आप देख रहे हैं ऊपर क्या हो रहा है? Can anybody explain me the first photograph? Direction. ये बेसिकली यहाँ से फिट जा रही है, वहाँ से निकल रही है, बीच में एक टेबल है, इस तरफ आपके डॉक्टर बैठा है, इस तरफ पेशेंट बैठा है. Why is it wrong? I'm telling you it's wrong, but why? Okay. क्या आप
द क्लिनिशियंस हियर स्पेशली कि आपने कभी इस चीज को ध्यान दिया है कि हमारे टेबल चेयर किस हिसाब से पड़े हैं हमारे ओपीडी में? नो, इट्स सच अ स्मॉल थिंग एंड अ वेरी डूएबल थिंग बट वी नेवर थिंक ऑफ इट. ठीक है, सो दिस इज द अरेंजमेंट व्हिच शुड नॉट बी देयर. अभी क्या कर सकते हैं? या तो हम ये कर सकते हैं कि डॉक्टर इधर बैठा है, पेशेंट इधर बैठा है और बीच में एक हवा का कर्टन है, थ्रू एंड थ्रू एयर जा रही है. दैट इज अ गुड कॉम्प्रोमाइज. और द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज मेरे पीछे से हमारे डॉक्टर के पीछे से हवा आ रही है, पेशेंट को जा रही है और बाहर एग्जॉस्ट हो रही है. ठीक है, गिवन दैट द डॉक्टर इज ओके. डॉक्टर खुद काफी मैं नहीं बोली थी सर. एक राइडर है नीचे, प्रोवाइडेड दैट द डॉक्टर इज हेल एंड हैप्पी. ठीक है, इन दैट केस बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, क्लीन एरिया से, डर्टी एरिया से लेके जो हवा है वो बाहर जाना चाहिए. इट शुड नॉट गो टू अ जो जहाँ पे कोई इन्फेक्शन कर सकते. गुड कंप्रोमाइज वाला करेक्ट हो गया. गुड कंप्रोमाइज पे लिखा है, वही करेक्ट मेथड लग रहा सर है. दोनों है बट एज पर जो गाइडलाइंस जो बोलते हैं दिस इज अ बेटर मेथड गिवन दैट पेशेंट इज. बट अगर आपको लगता है कि यू आर डाउटफुल इफ द डॉक्टर इज फाइन, नॉट कैन गो फॉर दिस. Doctor is also always exposed.